हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी का स्पेशल बैच है ये, जो हर एग्जामिनेशंस के रेलवे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। पार्ट 4 वीडियो आज हम करने वाले हैं, जिसमें अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 300 से लेकर के 400 तक करेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन ना दबाना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द लाहौर रिजोल्यूशन इन द ईयर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग adopted the Lahore resolution in which year? So what is the correct answer? It is 1940. So when was the Muslim League founded? So Muslim League was founded after the partition of Bengal after 1 year, that is 1906. Who observed the Pratyaksh Karyavahi Divas on 16th August 1946? Muslim League. So the name of the chapter we are studying right now is chapter number 13 is Muslim League. तो हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? मुस्लिम लीग जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाते हैं मुस्लिम लीग। द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज मेड इन एट द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन विच ईयर? It was done in the Lahore session was done in 1940. Where was the Muslim League founded? ढाका, सभी लोग को बताया था हमने कि ढाका में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। The 1943 कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, the 1943 Karachi session of Muslim League adopted the slogan divide and quit. When was All India Muslim League founded? So I said that after बंगाल का विभाजन के 1 साल के बाद जो है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया था, 1906 में हो गया था। When was the All India Muslim League established in Dhaka? 1906, ये हमने बात कर लिया है। Who led the foundation state of Delhi during Delhi Darbar in 1911? Now next chapter is chapter number 14, Delhi Darbar. Delhi Darbar. Who led the foundation state of Delhi during Delhi Darbar 1911? That is George V. In which year was Delhi officially announced as the capital of British India by Emperor George V? In which year? I just said you, it is in the year 1911. When was New Delhi made the capital of country? Capital of country by Britishers, it was made in the year 1911. When did the capital of India transferred from Calcutta to Delhi? So initially Britishers ruled from Calcutta, but later on they shifted to Delhi and made the capital of India as Delhi. In which year? That is in 1911. From which city India's capital was transferred to Delhi? Same question. Calcutta, it was transferred to Delhi. Which popular tourist destination of India was built in 1911 to commemorate the visit of King George V and Queen Mary? Gateway of India, everyone knows that. Who was the founder of Home Rule League movement? So who was the founder of Home Rule League movement? So the next chapter is chapter number 15, that is Home Rule movement. So that was Annie Besant. The Home Rule founder was Annie Besant. Home Rule, established in 1915-16, was served as a subsidiary unit of Indian National Congress. So Annie Besant was also
the president of Indian National Congress. So it was a subsidiary unit of Indian National Congress Home Rule League. Now next chapter. So next chapter is chapter number 16, that is topic number 16, that is revolutionary movement. It is very important topic. हाँ, बहुत important topic है ये revolutionary movement. Who inspired the Young Bengal movement? The Young Bengal movement was inspired by Henry Vivian Deroggio. Henry Vivian Deroggio was the inspiration for Young Bengal movement. Next, the first national flag of India is said to have hoisted in 1906. At which place? It was hoisted in Kolkata. ठीक है, it was hoisted at Kolkata in 1906. 7th August 1906. The member of Khudai Khidmatkar organization was famous as name of. खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन जो था किसके नाम पे फेमस था? तो आप सब लोग को किस चीज़ के लिए फेमस था? तो ये रेड कुर्ती. व्हाट वाज दैट? रेड कुर्ती, राइट? सो खान अब्दुल गफ्फार खान was the founder of Khudai Khidmatkar movement and organization. Who among the following organized the red shirts? I just said Khan Abdul Ghaffar Khan. Red shirts. The first nationalist revolutionary movement in British India emerged from Bengal. You know that first nationalist revolutionary movement in British India emerged from Bengal. Who among the following was known as extremist leader during the freedom movement in India? Everyone knows that Lal Bal Pal. So Bal is there. So Lal Bal Pal is Lal Lajpat Rai, Bal is Bal Gangadhar Tilak, and Pal is Bipin Chandra Pal, extremist leader. Tilak's slogan was Swaraj is my birthright and I shall have it. Next question. The tricolor which was hoisted in Stuttgart by Madame Kama was smuggled into British India by. So the tricolor was smuggled. So what was that? It was Indulal Yagnik. Indulal Yagnik smuggled it. Okay. Indulal Yagnik. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw smoke bombs at Delhi Legislative Assembly. What were they protesting against? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे उन्होंने स्मोक बॉम्ब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पे डाल फेंका था. क्या चीज के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल. सो दे वर अगेंस्ट ट्रेड dispute bill and public safety bill. Who among the following was not associated with the revolutionary organization अनुशीलन समिति? तो अनुशीलन समिति से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो था एसोसिएटेड नहीं था? तो कौन नहीं थे? ठीक है, तो राजेंद्र लहिरी नहीं थे, भूपेंद्र नाथ दत्ता थे, बरिंद्र कुमार घोष भी थे, जतेंद्र नाथ बनर्जी भी थे. नेक्स्ट. Which revolutionary organization in Bengal was established by Barindra Kumar Ghosh? It was Anushilon Samiti. The Indian national flag tricolor was unfurled by Bhikaiji Kama in
जर्मनी 1907. Which of these cities freedom fighter Chandrasekhar Azad shot himself after being surrounded by British policemen? तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी जब उनको ब्रिटिश के पुलिस मैन लोगों ने क्या कर लिया था, घेर लिया था उन्हें। तो आपको बताना ये कौन सा जगह था। इस जगह का नाम था इलाहाबाद। कहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी? इलाहाबाद में। नेक्स्ट, द गदर पार्टी who was founded by Indians in the year 1913, where was its headquarter? तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था जो इंडियंस लोगों ने 1913 में बनाया था? तो इट वाज इन सैन फ्रांसिस्को। Who among the following was involved in अलीपोर बॉम्ब केस? अलीपोर बॉम्ब केस में कौन इन्वॉल्व थे? तो आपको पता होना चाहिए, वो थे सर अरोबिंदो। Who shot dead Rand the commissioner of police Pune due to failure to check the plague in India at the end of the 19th century in India? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये थे दामोदर चापेकर। ठीक है, तो दामोदर चापेकर ने रैंड को, जो कमिश्नर पुलिस थे पुणे के, उनको गोली मार दी थी। क्यों भाई? क्योंकि वो फेल हो गए थे, प्लेग फैल रहा था देश में 19th सेंचुरी में और वो फेल हो गए थे इस चीज का पता लगाने में, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। When was the हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA फॉर्म्ड? तो आपको बताना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 1924 में, 1924 में। ठीक है। Who was the co-founder of गदर पार्टी? अभी हमने जस्ट बात किया इस मामले में। वो कौन थे? हरदयाल was the co-founder of गदर पार्टी। In 1928, the Hindustan Socialist Republican Party HSRA, Hindustan Socialist Republican Army was established in Delhi. In which, who was the founder? At which place? Firoza Kotla, Delhi. So it is a ground, and it was done by Chandrasekhar Azad. By Chandrasekhar Azad. Next, who among the following was the one of the conceivers of the काकोरी robbery? काकोरी जो रोबरी हुआ था उसमें से एक का नाम बताइए आप, कौन है? तो वो थे अशफाकुल्ला खान। तो अशफाकुल्ला खान जो थे वो भी काकोरी रॉबरी में क्या थे? इन्वॉल्व थे। ठीक है, लखनऊ से ये दूर 16 किलोमीटर दूर ये काकोरी जगह है, टाउन है, जहां पे रॉबरी हुई थी। Who among the following freedom fighters was not involved in काकोरी ट्रेन रॉबरी? कौन इन्वॉल्व नहीं थे? तो आपको पता होना चाहिए भगत सिंह वॉज नॉट इन्वॉल्व, चंद्रशेखर आजाद इन्वॉल्व थे काकोरी कांड में, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाकुल्ला खान भी थे, लेकिन भगत सिंह जो थे वो काकोरी ट्रेन रॉबरी में इन्वॉल्व नहीं थे। लाल बाल पाल टू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डिड दीज फ्रीडम फाइटर्स बिलोंग रिस्पेक्टिवली? तो लाल कहाँ से थे? लाला लाजपत राय पंजाब से थे, सभी लोग को पता है। लाल इज लाला लाजपत राय, ये पंजाब से थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कहाँ से थे? सबको पता है, महाराष्ट्र से थे। एक लोकमान्य तिलक नगर एक जगह भी है, लोकमान्य तिलक, महाराष्ट्र। और जो पाल थे बिपिन चंद्र पाल, वो कहाँ से थे? वो बंगाल से थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया?
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड चौरी चौड़ा कांड या चौरी चौड़ा कांड जो थे, चौरी चौड़ा कांड जो था कहाँ कब हुआ था? तो चौरी चौड़ा कांड कब हुआ था? 1922। ठीक है, ठीक है, 1922 में हुआ था, जिसमें कि 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में उनकी डेथ हो गई थी। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह एसोसिएटेड? तो किस ऑर्गेनाइजेशन से ये एसोसिएटेड थे? तो मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, they were associated with HSR, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, HSRA। नेक्स्ट, which two freedom fighters threw smoke bombs at the दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली 1929? यह अभी मैंने आपको बताया था, स्मोक बॉम्ब किसने डाला था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों इन्वॉल्व थे, उन्होंने स्मोक बॉम्ब डाला था। ठीक है, ये स्मोक बॉम्ब डाला था उन्होंने। ट्रेड डिस्प्यूट बिल था ये, और पब्लिक सेफ्टी जो हमने बात किया था जस्ट अभी। तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वाज इन्वॉल्व। राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड फॉर। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनको फांसी की सजा दी गई थी, बताइए क्यों? आपको बताना है क्यों। क्योंकि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है, काकोरी का जो ट्रेन रॉबरी हुआ था उसमें ये इन्वॉल्व थे। काकोरी ट्रेन हेस्ट, काकोरी ट्रेन रॉबरी में ये इन्वॉल्व थे, इसीलिए इनका क्या हो गया, इनको फांसी की सजा दी गई थी। विच फेमस रिवॉल्यूशनरी सेटअप बेस नियर सातर रिवर इन झांसी इन द 1920s यूजिंग द एलियास पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी? तो सातर रिवर जो झांसी में है वो 1920s की बात है, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। तो कौन सा रिवोल्यूशनरी सेटअप हुआ था, सेटअप बेस था जिसमें वो लोग इन्वॉल्व थे? तो आपको बताना है। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका? चंद्रशेखर आजाद। कौन सा? चंद्रशेखर आजाद। तो इन्होंने कौन सा नाम रखा था? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी इन्होंने अपना नाम रख लिया था। ठीक है, विच वन वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो HSRE में कौन से लोग कौन इन्वॉल्व नहीं थे? तो आपको पता होना चाहिए कि HSRA में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक कांग्रेस में चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, लेकिन नाना साहेब जो थे was not the part of या was not a member of हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन इज दिस, राइट? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय हुम? इसको किसने स्टैब्लिश किया था? तो इट वाज एस्टेब्लिश बाय भगत सिंह। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। भगत सिंह ने ही हिंदुस्तान HSRA का क्या किया था? फाउंडेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज हैपेंड? तो काकोरी कब हुआ था? तो 1925, 1925 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 9 अगस्त 1925। काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इन 1920 बाय, किसने स्टार्ट किया था? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने?
तो सबको पता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HRA या HSRA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीमन हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in the awakening of Indian women to fight for freedom, and she is known as the India's Nightingale। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सभी लोग को पता है ये बात। तो हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन चित्तागोंग आर्मरी रेड एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। चित्तागोंग आर्मरी रेड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो ये कौन थे? ये प्रीतिलता वाडेकर। कल्पना चावला का तो कोई चांस ही नहीं, तो टेक्नोलॉजी वाली बात है। प्रीतिलता वाडेडर, ठीक है, चित्तागोंग आर्मरी रेड में ये इन्वॉल्व थी। Who among the following was an Indian who was hanged at the age of 18 by the Britishers for joining the freedom struggle? 18 साल की उम्र में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। बताइए, जस्ट 18 साल की उम्र में, सोचिए, यंग लीडर, खुदीराम बोस, भूलिएगा नहीं, 18 साल की उम्र में। Which of the following organization was not formed outside India to help in the Indian freedom struggle? इंडिया से बाहर नहीं हुआ था, तो पता होना चाहिए भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन का भगत सिंह ने किया था, पता है आपको, मैंने बताया, और ये इंडिया में ही हुआ था। तो नॉट इन इंडिया बोला है, was not formed, तो इंडिया हाउस was formed outside, गदर पार्टी was done outside of India, बर्लिन कमिटी was also, ये तो नाम ही में ही लग रहा है आपको, बर्लिन कमिटी outside India, but HSRA was done in or organized by भगत सिंह इन कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे। Which of the following freedom fighters who wrote the epic कमला on the prison walls? एक एपिक है जिसका नाम कमला है, कौन से फ्रीडम फाइटर ने इसे लिखा था? तो ये आपको बताना है। तो ये लिखा था एपिक वीडी सावरकर ने, 1904 की बात है, ठीक है, और 50 साल का इनको इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था 1910 में, ठीक है। 1904 में वीडी सावरकर एक फ्रीडम फाइटर रहे थे, तो वीडी सावरकर हैज रिटन कमला ऑन द प्रिजन वॉल्स। भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स टू एवेंज हुम। किसका रिवेंज लेने के लिए जॉन सॉन्डर्स का भगत सिंह और उनके जो एसोसिएट थे साथी, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को मार डाला था, ठीक है। किसका डेथ की वजह से? तो लाला लाजपत राय, भगदड़ हुई थी एक, उसमें लाला लाजपत राय का डेथ हो गया था, इसकी वजह से जॉन सॉन्डर्स को उन्होंने मार डाला था ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, हु वाज द मेन एक्यूज्ड along with the भगत सिंह इन असेंबली बॉम्बिंग केस? असेंबली में ही बॉम्ब डाल दिया था। तो आपको बताना है कि भगत सिंह के साथ और कौन थे शामिल मेन एक्यूज्ड? तो वो थे बटुकेश्वर दत्त,
तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ जो थे एक्यूज थे, बम असेंबली में बम उन्होंने डाल दिया था। वही सेम ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, पब्लिक सेफ्टी बिल था, स्मोक बॉम्ब जिसको बोलते हैं, है ना। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेर हैंग्ड फॉर द मर्डर ऑफ, तो अभी जैसे हमने बताया था आपको, जेपी सॉन्डर्स, ब्रिटिश ऑफिसर थे ये जेपी सॉन्डर्स। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। किनको मारने की वजह से? जेपी सॉन्डर्स को उन्होंने मार दिया था। अरुणा असफ अली रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अरुणा असफ अली जो है, इंडियन आईएनसी का फ्लैग इन्होंने फहराया था। कब? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, ठीक है, 1942 में। और कौन सी जगह पे? ग्वालियर टंक मैदान। और ये कहाँ पे था? मुंबई, ठीक है। तो अरुणा असफ अली इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग इन्होंने झहराया था कब? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। कहाँ पे? ग्वालियर मैदान में, मुंबई। विच रिवॉल्यूशनरी एम्ब्रेस्ड डेथ बाय हिमसेल्फ, खुद को गोली मार दी थी? तो आपको पता है चंद्रशेखर आजाद ने, जब ब्रिटिशर्स ने इनको घेर लिया था, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स ने घेर लिया था, तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। और ये वक्त था, जो टाइम था, वो था 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवॉल्यूशनरी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हु कुड नॉट बी हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, कुड नॉट बी हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स। देखिए, ऐसा था कि अगर चंद्रशेखर आजाद पकड़े जाते तो उन्हें भी फांसी दी जाती, इसीलिए इन्हें खुद को गोली मार लिया था, इसीलिए इसको हैंग कर ही नहीं पाए लोग। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को हैंग नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। 27 फरवरी 1931। इन विच ईयर फ्रीडम फाइटर भगत सिंह वॉज हैंग्ड, ठीक है, कौन से ईयर में? तो जिस साल चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी, उसी साल भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। और उनके साथ किनको किनको दिए थे? राजगुरु और सुखदेव को भी दिया गया था। लेकिन कब दिया गया था? मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी रखूं। 23 मार्च 1931, 23 मार्च। जबकि आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने बताया था 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने खुद को क्या की थी? गोली मार ली थी। ठीक है, उसके 24 दिन बाद, आफ्टर 24 डेज, ठीक है, 1931 है, तो ये तो नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी तो 28 दिन का ही होगा, और बाकी 23 दिन। 24 दिन के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। याद रखेंगे, 23 मार्च 1931 को। समझ रहे हैं बात को? हाँ या ना? क्लियर है सबको? चलिए, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर अनफर्ल्ड द फ्लैग नेम्ड सप्तऋषि एट स्टटगर जर्मनी इन 1907? कौन से फ्रीडम फाइटर ने झंडा फहराया था सप्तऋषि एट स्टटगर्ट जर्मनी 1907 में? तो कौन से फ्रीडम फाइटर ने ऐसा किया था? तो उस फ्रीडम फाइटर के नाम था मैडम कामा। मैडम कामा,
ठीक है, 1907 की बात है। हु हैड फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी? अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो ये थे विनायक सावरकर। तो विनायक सावरकर जो थे और गणेश सावरकर, ये दोनों ने 1904 में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। Which of the following did Rowlatt Act 1919 entail? रॉलेट एक्ट 1919 कब हुआ था? तो अब हम लोग चलती है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17, टॉपिक का नाम है रॉलेट एक्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड रॉलेट एक्ट 1919 इंटेल? ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट में क्या था, मैं आपको बता दूं। इंडिफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। देखिए इसमें क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स लोग, अरेस्ट कर रहे थे बिना सुनाई बिना कार्रवाई, सब लोग को क्या कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे बिना कोई पर्पस के। ठीक है, जिनको मन हो रहा था अरेस्ट कर लिया विदाउट ट्रायल, बिना कोर्ट में पेशी किए उनको अरेस्ट कर देते थे। तो ये रॉलेट एक्ट था। आपको पता होना चाहिए इसका जो कमेंट था, नो दलील, नो वकील, नो अपील, डायरेक्ट अरेस्ट। तो ये किसके अंदर था? रॉलेट एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1919 में आया था। With which of the following is the comment no दलील, नो वकील, नो अपील? कौन से एक्ट में था? रॉलेट एक्ट में। इन विच ईयर वाज द सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट कॉल्ड बाय महात्मा गांधी? ठीक है, रॉलेट एक्ट को रोकने के लिए सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कौन से ईयर में किया था? तो हमने फिर से बात किया था कि ये कौन से ईयर में था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, 6 अप्रैल 1919। इसको उन्होंने ब्लैक एक्ट भी बोला था। महात्मा गांधी ने इसका नाम जो है ब्लैक एक्ट बोला था, काला कानून। इंडियन पब्लिक के थ्रू, इंडियन पब्लिक ने बोला था इस बात को। ना सुनवाई कर रहे हैं, ना दलील हो रहा है, डायरेक्ट अरेस्ट कर दे रहे लोग। अगेंस्ट विच एक्ट महात्मा गांधी आस्क्ड पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंस अपोजिशन? ठीक है, नॉन वायलेंस अपोजिशन महात्मा गांधी ने कहा था। तो आपको खुद पता होगा 6 अप्रैल 1919 किसकी बात हो रही है? रॉलेट एक्ट की। Against which act in Mahatma Gandhi asked people to observe 6 April as a day of non-violence opposition? Rowlatt Act 1919. The Satyagraha Sabha was founded in 1919 by, तो सत्याग्रह सभा किसने स्टार्ट किया था? सबको पता है, महात्मा गांधी, दैट इज मोहन चंद्र करमचंद गांधी। तो सत्याग्रह सभा किन्होंने स्टार्ट किया? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, फरवरी 1919 में। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अगेंस्ट विच एक्ट गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट एंड स्टार्ट ए सत्याग्रह? तो रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। Which of the following was a measure taken under the Rowlatt Act? तो रॉलेट एक्ट के अंदर क्या चीजें डिसाइड किया गया था, क्या होगा? इसके अंदर जो है इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, सीधा जेल में डाल देते थे बिना सुनवाई किए, डायरेक्ट जेल में डाल देते थे। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन, रॉलेट एक्ट कौन सी ईयर में पास हुआ था? तो सभी लोग को पता है, यह 1919 में पास हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड द ब्रिटिश
government passed the notorious Lawless Act. This act followed political detention without trial. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि कैद कर लो लोगों को, पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये जो थी, ये कौन से ईयर में, तो आपको बार बार वही चीज बताया जा रहा है, 1919। आप सोचिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, गांधी जी कैंपेन अगेंस्ट दैट was in response to the British censorship of the press and detention without trial is Rowlatt Act. तो आई होप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है चैप्टर 18, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैसेकर। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जलियांवाला बाग इंसिडेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा रॉन्ग है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस आफ्टर द चौरी चौड़ा इंसिडेंट विच ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विद द पुलिस। ये तो गलत बात है भाई, ये तो गलत बात है। तो चौरी चौड़ा कांड जो है 1922 में हुआ था और जलियांवाला बाग पहले हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए चौरी चौड़ा जो था 1922 में हुआ था और जलियांवाला बाग तो 1919 में हुआ था। तो टॉक आफ्टर नहीं होगा, टेक बिफोर होगा, टुक प्लेस बिफोर होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो चौरी चौड़ा कांड जो है 4 फरवरी 1922 में हुआ था, जबकि जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। 13 अप्रैल, भूलिएगा नहीं, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। दिस इंसिडेंट ऑन 13 अप्रैल, हाँ लिखा था 1919 when the public had gathered in a meeting at Jallianwala Bagh. Yes, the Jallianwala Bagh incident was the result of Rowlatt Act of 1919, March 1919, which empowered the government to imprison anyone without trial. ये भी बात सही है। जनरल ब्रिगेडियर जनरल डायर ओपन फायर ऑन द गैदर्ड पीपल विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, ये भी बात सही है। तो यानी मतलब फर्स्ट वाला जो है गलत हो गया, पूछा था इनकरेक्ट ना, तो सब पहला वाला गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश policies triggered people to assemble at जलियांवाला बाग अमृतसर। तो मैंने आपको बताया 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किसके खिलाफ रॉलेट एक्ट, जिसमें बिना सुनवाई लोगों को अरेस्ट कर रहे थे ना, उसी के खिलाफ लोग क्या हुए थे, जमा हुए थे। Which honor did Gandhiji return in protest of the Jallianwala Bagh मैसेकर। तो गांधी जी को एक उपाधि मिला था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसको लौटा दिया था उन्होंने, ब्रिटिश अंपायर ने दिया था उनको। और कौन सा लौटा दिया उन्होंने, कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की जो उपाधि थी उनको लौटा दिया था। 1920 की बात है ये, 1920। रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड अवार्ड बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो नाइटहुड अवार्ड रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रिटर्न कर दिया, जो एक नोबेल लॉरेट भी रहे थे जलियांवाला बाग की वजह से। तो जलियांवाला जो बाग ट्रेजेडी था, नाइटहुड का अवार्ड उन्होंने रिटर्न कर दिया। हु किल्ड जनरल डायर, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर। तो सरदार उधम सिंह, इसके ऊपर मूवी भी आई थी, जनरल डायर को मार दिया था 21 साल के बाद 1940 में, 13 मार्च 1940। याद रखिए 13 तारीख को ही, 13 अप्रैल को
1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था और 13 तारीख को ही सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया था। ठीक है, और लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर के मारा था उसको, लंदन के कैक्सटन हॉल में। तो जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। हम लोग बार बार इसी बारे में बात कर रहे हैं। विच कमिटी वॉज सेट अप बाय लॉर्ड चेम्सफोर्ड टू इंजन इनटू जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन 1919। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक कमिटी बनाया जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था 1919 में। उसका नाम क्या था उस कमिटी का? उस कमिटी का नाम था हंटर कमिटी। क्या नाम था? हंटर कमिटी। इसमें इंक्वायरी करने के लिए बनाया गया था कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों ऑर्डर दिया गया था। तो इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए हंटर कमिटी बनाया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने बनाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द फेमस जलियांवाला बाग लोकेटेड? 13 जनवरी 2021 अमृतसर। 13 जनवरी का वो डेट था जिस दिन मैंने वो पेपर क्लियर किया था। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द जलियांवाला बाग मैसेचर टेक प्लेस? तो कौन सी सिटी में? अमृतसर। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ऑन विच डेट डिड जलियांवाला बाग मैसेचर टेक प्लेस? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ वायसराय। उस समय वायसराय कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मैंने आपको बताया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, और इन्होंने ही एक हंटर कमिटी बनाया था कि पूरा इंक्वायरी करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ था। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वाज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। यस और नो? यस। तो रॉलेट एक्ट में क्या है, बिना पूछे, बिना सुनवाई, ना कोई दलील के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। इसीलिए जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो है रिजल्ट था। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे डिस्कस करने के लिए कि ऐसे इनको कैसे रोका जाए। नेक्स्ट, फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द जलियांवाला बाग मैसेकर माइकल फ्रांसिस ओडॉयर was assassinated by उधम सिंह। कैक्सटन हॉल, मैंने आपको बताया था कौन सा? कैक्सटन हॉल, लंदन। लंदन में क्या हुआ था इनका? लंदन में मार गिराया था उन्होंने, उधम सिंह ने। याद रखिएगा 13 मार्च, 13 मार्च का वो दिन था जिस दिन, और 21 साल के बाद की बात है, 1940, 21 साल के बाद सरदार उधम सिंह ने इन्हें गोली मार के हत्या कर दी थी। ठीक है, 21 साल बाद। नेक्स्ट, इन विच ईयर जलियांवाला बाग मैसेकर टू 1919 1919 13 अप्रैल 1919। इन विच ईयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर हेल्ड 1919। आई होप सभी लोग को पता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑर्डर जलियांवाला बाग मैसेकर? जनरल माइकल ओडायर। तो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ भी डायर लिखा है और यहाँ भी डायर लिखा है, तो इसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है, तो मैं आपको बता दूं, वो थे कर्नल रेजिनाल्ड डायर। कर्नल रेजिनाल्ड डायर।
ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इट वॉज कर्नल रेजिनल्ड डॉयर, इन्होंने ऑर्डर दिया था। विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी असैसिनेटेड माइकल ओडायर, तो माइकल ओडायर को जो है किसने मार गिराया? उधम सिंह ने। ठीक है, तो विच फ्रीडम फाइटर शॉट जनरल माइकल ओडायर, तो माइकल ओडायर को किसने गोली मार के हत्या कर दी थी? उधम सिंह ने। ऑन विच फेस्टिवल डे जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, बैसाखी था उस टाइम पे। यस, पंजाब का एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, सिख लोगों का फेस्टिवल होता है 13 अप्रैल को 1919 में। बैसाखी का दिन था वो, जिस समय पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, हु किल्ड जनरल ओडायर इन लंदन टू अवेंज द जलियांवाला बाग मैसेकर, सरदार उधम सिंह, एवरीवन नोज दैट। Which movement was led in India by the Ali brothers, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, तो अली ब्रदर्स सब लोग को पता है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आ रहा है वो चैप्टर नंबर 19 है, उसका नाम है नॉन कोऑपरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो विच मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स में कौन कौन थे? शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे, तो दैट वाज खिलाफत मूवमेंट। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में क्या बात सही है? ठीक है, इट वाज ए मूवमेंट इन डिमांड ऑफ पाकिस्तान, ये तो गलत है। इट वाज मूवमेंट टू रिस्टोर मुगल रॉयल फैमिली इन इंडिया, ये भी गलत बात है। इट वाज ए मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द तुर्की सल्तान, यस, टर्की सल्तान का सपोर्ट करना था, इसीलिए ये खिलाफत मूवमेंट किया गया था। मूवमेंट अगर मैसेकर ऑफ जलियांवाला नहीं है, जलियांवाला बाग का तो रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था, तो ये गलत है ये। ठीक है, तो तुर्की के जो सुल्तान थे, ठीक है, इसमें यही था कि उस समय पे क्या था कि ब्रिटिशर्स लोग चाहते थे कि ये जो खलीफा वाला पोस्ट है ना, वो हट जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जो था, तो यहाँ पर ये लोग डिफेंड कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खलीफा का जो पोस्ट है वो रहेगा। ठीक है, इस्लामिक फेथ को बचा के रखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग लेड द खिलाफत मूवमेंट, शौकत अली, यस, एक मोहम्मद अली भी है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये चलेगा, शौकत अली। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगन इन इंडिया, आपको मैं बता दूं कि जैसे ही खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट जो है कब हुआ था, मैं थोड़ा आपको क्लैरिटी रख दूं। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था, ये जो हुआ था 1919 से लेकर के 1924 तक। वो बात अलग है कि 1919 के 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसी समय स्टार्ट हो गया था खिलाफत मूवमेंट, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि कौन सी ईयर में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया था। तो जस्ट उसके एक साल बाद जो है
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था 1920 में। When did the All India Khilafat Committee pass a resolution declaring that no Muslims should serve in army? खिलाफत कमेटी में ये बात कही गई थी कि कोई भी मुस्लिम ब्रिटिश आर्मी में जो है सर्व नहीं करेगा। ये रिजोल्यूशन पास कर दिया था। तो पता होना चाहिए आपको, ये बात है जुलाई 1921 में, क्योंकि 1920 से लेकर के या 1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत मूवमेंट चला था। तो कोई भी मुस्लिम जो है आर्मी में भर्ती नहीं होगा। ठीक है, तो जुलाई 1921। तो आपको मैं बता दूं कि लीडरशिप कौन था। अली ब्रदर्स थे, मौलाना आजाद थे, हकीम अजमल खान थे और हसरत मोहानी थे। Which of the following was the result of the non-cooperation and खिलाफत मूवमेंट? तो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के लिए कौन सा रिजल्ट था, क्या रिजल्ट हुआ था? तो ये जो वर्किंग क्लास के लोग थे ना, वेंट ऑन स्ट्राइक इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज। ये वर्किंग क्लास के जो लोग थे ना, स्ट्राइक में चले गए थे, स्ट्राइक कर दिए थे बहुत सारे शहर में और बहुत सारी सिटीज में। Which of the following was the result of the non-cooperation and खिलाफत movement? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में कौन सा था? द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया? तो खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया जो है, क्या सही है इसके लिए? रिस्टोर मुगल रूल रॉयल आर्मी, क्या ये सही है? नो। डिमांड ऑफ पाकिस्तान, नो। मैसेकर ऑफ मलिक पर जलियांवाला बाग, नो। टर्की सुल्तान को बचाने का सपोर्ट हुई थी, ये सही है। नेक्स्ट, द खिलाफत मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन, कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। तो टर्की सुल्तान को बचाने की बात हो रही थी, तो टर्की में ही स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता, खलीफा लोग ना वीक पड़ गए थे। ठीक है, तो इंडियन मुस्लिम्स ना एग्रेसिव हो गए ब्रिटिश को लेकर के, और ब्रिटिशर्स लोग उसको कमजोर करना चाहते थे। इसीलिए इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनको प्रिवेंट करना चाहते थे, इसीलिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। विच अदर मूवमेंट was combined with the non-cooperation movement in 1920? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ कौन सा मूवमेंट साथ में चल रहा था? खिलाफत मूवमेंट, टर्की सुल्तान को प्रिवेंट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का जो आज का ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आगे चल करके जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे चल करके जो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेंगे, पार्ट 4 के वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन में 400 से स्टार्ट करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट? अली ब्रदर्स। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग क्वेश्चन में 401 से स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम चैनल को ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 400 ऑनवर्ड्स हम लोग आगे करेंगे। तो ट्यून अप विथ अस, press the bell icon for the further notifications of the next video. Till then, take care and prepare well. Best of luck for the examinations. This is Professor Ravi Ranjan sir here. Meet you in the next video. Thank you.